If you can briefly give us your background about yourself and how has you're a home buyer. So if you can tell us about when did you make the booking and what is the status of your project, and you had told us that you were expected to get the possession of the flat in July 2020. That was your original date that was issued by Maharera. So if you can tell us what is the status and how has the lockdown impacted you as a home buyer? Yes, madam. My name is Ravi Gauli. I am the resident of Kalyan city, and I am living here from last 40 years. My basic qualification is I am the B Computer Science engineer, and as well as I am the along with the B Computer Science engineer, I am the farmer also. And my native is from the Shirdi, Ahmednagar district. Okay. So we are living in the Kalyan region from last 40 years. My current age is 43. Mm-hmm. I booked a flat in 2010, October 2010, in Lifestyle City, promised by Nirmal Lifestyle, the great developer in the Mumbai region. And the agreed possession date as per the agreement is 2016. And today, as on June 2020, we are not able to get our promised flat due to this pandemic situation, due to Maharera obligation, and due to our system irrelevance services. So we as a home buyer totally impacted by all these pandemic situation in government also and pandemic due to the corona also. So our journey start with the booking in 2010. It was promised by the builder that they are going to give the possession in 2013-14, but during the agreement it was mentioned that they are hand over the possession in December 2016. So as a common home buyer, we follow all the processes of the bank loan, and we uh, contributes our money, and we paid to the builder very promptly. Later on, due to this demonetization by the Modi government, it was the it was said that that was the really red setback to the real estate sector. So that was the one of the cause. Then second cause given by the builder is they are not having so much funds to complete the project. Then RERA come into the picture. Now, in late September, October 2016, the RERA Act is developed and released for the implementation. And from June 2017, the RERA is implemented with the proper IT infrastructure. For any project to complete, it will take more than 3 to 4 years. So in June 2017, RERA came as an active regulatory body, and from that period to till that period, even RERA could not able to hand over the possessions to the home buyers, which are the project registered with RERA in 2017. So it was the big failure on the part of the Maharera implementation, and now recently due to this pandemic situation, again our project is unilaterally delayed, and RERA is interested to give the 6 month moratorium or extension unilaterally to the builders, but it was not ready to give the moratorium on the part of the EMI as well as moratorium on the part of the possessions to the common home buyers. So Maharera is obviously favoring all the builders lobby, and with the genuine intention of the Maharera implementation, it was uh, assured to the home buyers that it will be helpful. But through our journey from last 4 years, we will not get any support, actively support or involvement towards the possession drive. Mm-hmm. Since Maharera is not the encashment of the compensation from the builder and the real estate sector, but it has to assure the possession to the home buyers. हमने पैसा कमाने के लिए या इंटरेस्ट कमाने के लिए फ्लैट नहीं लिया था. We want the flat for the residence purpose to enjoy our life and to give the good life to our children. जब मैंने when I booked the flat in 2010, my dream is my kid will be enjoying the good facility, good environment, natural amenities will be there, and he will be living in nature.
So that was promised by our builder. But after the 10 plus 2 years, 12 years, we are not able to get our dream home. Even uh, Maharera is there, Mofa is there, the government is there, but still we are not getting our flat as on today's date. And now again, due to this pandemic situation, it was not hopeful to get the flats in the next 2 3 years. So this was how we are impacted all this due to all these systems related issue as well as this pandemic. Okay. So you went to Maharera in 2016, or when did you register your case with Maharera? Yes, ma'am. I went to Maharera in 2017-18. Okay, that was your association of home buyers, right? Yes, I am from the Mumbai region, Kalyan region. I complained Maharera in probably for July 2017. Okay, and what was the date given by Maharera to you after extension that was given to builder? When was the possession expected? तो अगेन व्हाट क्या हुआ महारेरा के साथ में, तो महारेरा एक अलग से एक नया स्टोरी हो चुका हमारे लिए. सो जो 10 साल से प्रोजेक्ट डिलेड था उसके लिए हमने जो कंप्लेंट्स किया था, तो हमने वहां पे जाके देखा. सो दैट वाज द टोटली इन फेवर ऑफ द बिल्डर्स लॉबी. महारेरा में क्लोज कैबिन हियरिंग होता है. क्लोज कैबिन हियरिंग में कैसे होता है कि जो कंप्लायंट रहेगा वो बिल्डर के लोग और जज. सो no one could hear the case judgment from that particular builder. तो ये ओपन हियरिंग होना चाहिए महारेरा में, जैसे कि बाकी स्टेट्स में है. Right. भोपाल में ओपन हियरिंग है, जैसे रेगुलर कोर्ट्स में रहता है वैसे ओपन हियरिंग रहता है. So my first question to Maharera is कि what was the practice of this closed cabin hearing? If you are उनको अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करवाना है, लोगों को एश्योरेंस देना है, लोगों को घर दिलवाना है, तो यही से मल प्रैक्टिस चालू हो जाता है महारेरा का. हमने जो ऑब्जर्व किया वो हम आप बोलते हैं. हमारे केस में हमें ऐसा लगता था कि दैट वाज द बिल्डर्स ऑफिस. महारेरा के जितना भी स्टाफ है दे आर वेरी फ्रेंडली विद द बिल्डर्स पीपल, एंड ऑलरेडी द केस हियरिंग्स एंड द जजमेंट्स आर प्री डिसाइडेड, पहले से हो चुका रहता था. एंड जब हम जाते थे तब सबसे पहले तो बोलते हैं म्यूचुअल सेटलमेंट कर लो आप बिल्डर के साथ में. अच्छा. तो म्यूचुअल करने के बाद भी लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिले. तो मेरा भी केस वैसे ही हुआ. मैंने जज को पूरा डाटा दिया, पूरे एविडेंसेस दिए, रिटन आर्गुमेंट दिया, वर्बल आर्गुमेंट्स किए, लेकिन जज सुनने के लिए रेडी नहीं था. तो इन वन ऑफ माय हियरिंग आई वेंट टू द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर गौतम चटर्जी, वो चेयरमैन है महारेरा के. तो मैंने उसको मेरा कंसर्न किया कि डॉक्टर सतबीर सिंह he was the judge. मैं बोला वो प्रॉपरली हियरिंग नहीं ले रहे हैं एंड ही इज बायस्ड टुवर्ड्स द बिल्डर, तो इसके लिए क्या करना चाहिए. देन सतबीर सिंह के जो असिस्टेंट है उनको उन्होंने कॉल किया कि मैडम एक क्या इशू है, इनका कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं. तो उन्होंने तब मुझे फिर से हियरिंग का डेट दिया और तब से मेरा हियरिंग थोड़ा अच्छे से चलने लगा. लेकिन जो कॉमन होम बायर है वो पहले ही कोर्ट में जाने के लिए डरता है, और यहाँ पे इन्होंने कोर्ट के जैसा माहौल करके रखा है एंड साथ में ये क्लोज कैबिन हियरिंग रहता है वैसे ही. और ये पूरा डिटेल्स होम बायर से सुनते ही नहीं है, इनको लगता है कि नहीं ये सब हमें मालूम है, ब्ला ब्ला ब्ला, इनका स्टोरी रहता है. एंड ऑल द होम बायर्स वांट टू एनकैश द कंपनसेशन फ्रॉम द बिल्डर. लोगों को कंपनसेशन इज द सेकेंडरी पार्ट क्योंकि उनका वो लॉस हुआ है, बट होम इज द प्राइमरी कंसर्न फॉर ऑल द पीपल. तो वहां पे मेरा पहला जर्नी स्टार्ट हुआ महारेरा में. महारेरा का ऑर्डर मुझे आ गया 10.25% से कंपनसेशन देना चाहिए. तो स्टार्टिंग में कुछ महीना बिल्डर ने वो कंपनसेशन दिया, उसके बाद में उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उनके पास पैसा नहीं था. फिर मैंने यही ऑर्डर को मैंने एपेलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया. मैंने महारेरा का एक एपेलेट ट्रिब्यूनल का विंग है, वहां पे मैंने चैलेंज किया कि जो प्रोजेक्ट 95% कंप्लीट करके दिखाया है रेरा के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 4 साल नहीं लगते हैं. सो आई रिक्वेस्टेड टू ट्रिब्यूनल कि 95% वर्क कंप्लीट करने के लिए आपने 4 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया. सो दैट वाज द सेकंड फेवर on the favor to the builders for getting the unilateral extension without consent of the home buyers.
तो right. महारेरा ने सेकंड गलती वहां पे उनका है कि यूनिलैटरली विदाउट कंसिडरिंग कि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन स्टेटस क्या है, ये बिना देखे उन्होंने एक्सटेंशन भी दे दिया बिल्डर को 4 साल का. Mm-hmm. So again, the project which shall be completed in December 2016 with Mahera, it was extended to next 4 years. So my agreed date of possession as per the Mahara is July 2021. Now it is, first it Sorry, was July July, 2020. sorry, July 2020. So it was Okay. the date as per the Mahara registration. तो अभी हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन पे. महारेरा ने एक्सटेंशन तो दे दी, प्लस 6 मंथ्स का एड ऑन एक्सटेंशन वो दे सकते हैं. तो महारेरा ये कुछ भी ना मॉनिटर कर पा रही है, ना उनका एक्टिविटीज के ऊपर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर कुछ भी कंट्रोल है. Okay. उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके लिया है. आज के डेट में बिल्डर लोग महारेरा के वेबसाइट में जाके प्रोजेक्ट का स्टेटस अपलोड करते हैं. एज ऑन टुडे अगर आप महारेरा के वेबसाइट पे देखेंगे तो हमारा जो बिल्डिंग का स्टेटस है वो 2016-17 में जब रेरा आया था वैसे के वैसा ही है. Okay. उसके ऊपर महारेरा ने बिल्डर्स को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा या फॉलो अप नहीं किया कि व्हाट वाज द स्टेटस. So there is And no what shall be ground the monitoring. There is no monitoring on the ground की actual site पे nothing. क्या हो रहा है. Okay. So after the lockdown was announced, the government has given the benefit of force majeure, and that is applicable to your project as well, right? Yes ma'am. So what do you have to मैडम say ये जो about फोर्स this? मेजर कंसेप्ट है ना, मैं आपको बोलता हूँ कि ये फोर्स मेजर कंसेप्ट महारेरा कस्टमर के साइड से क्यों नहीं लागू कर सकती है. अगर कोई भी बिल्डर, रेरा के पास रजिस्ट्रेशन होता है और डेडलाइन दी जाती है, अगर कोई भी बिल्डर वो डेडलाइन नहीं अचीव कर पाता है, तो जैसे ये फोर्स मेजर यहाँ पे डिक्लेयर होता है वैसे ही महारेरा लोगों को उनके लॉसेस रिकवर करके क्यों नहीं या नहीं चिपकती है. यानी अभी बिल्डर्स लॉबी को थोड़ा इम्पैक्ट होने लगा इमीडिएट महारेरा फोर्स मेजर डिक्लेयर किया, लेकिन विदाउट फोर्स मेजर जो प्रोजेक्ट इससे पहले डिलेड हुए हैं 10-10 साल, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में महारेरा ऐसा स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है. तो अगेन दिस टाइम आल्सो दे आर फेवरिंग टू द बिल्डर्स. तो आपका ये भी कहना है कि आपके प्रोजेक्ट को पहले से एक्सटेंशन 4 साल का मिल गया था और उसके ऊपर लॉकडाउन के बाद उनको एडिशनल एक्सटेंशन मिल गया है. एडिशनल एक्सटेंशन मिल गया. एंड दिस इज नॉट फेयर एज पर यू. यस मैडम, महारेरा का टोटली इम्प्लीमेंटेशन ही गलत है मैडम. महारेरा इज नॉट द कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस. दिस इज द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन. But it shall be the actual implementation of the Maharera with the genuine and the ethical concept. It shall be to provide the confidence and assurance to the home buyers that they will get the homes as per their requirements. Right. तो ये implementation में महारेरा totally failure है मैडम. आज भी मैं आपको बोलता हूँ कि एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा है, महारेरा का implementation इतना failure है, सेक्शन 18 वगैरह एप्लीकेबल करने के लिए उनको लोगों को वहां पे कंप्लेंट करने की जरूरत ही नहीं है मैडम. इट वाज नॉट नेसेसरी कि होम बायर जाके वहां पे कंप्लेंट कर दे. आपके पास सब डाटा है, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन है, बिल्डर का डेडलाइन आ जाता है, टाइमलाइन आ जाता है, ऑटोमेटिक एक सिस्टम लगा के दे दो कि ये डेडलाइन हो जाता है तो तुम्हारे ऊपर इतना पेनल्टी और इतना कंपनसेशन बाय डिफॉल्ट लोगों को जाना है. तो वहां पे महारेरा में होम बायर्स को कंप्लेंट करनी नहीं पड़ेगी, कंप्लेंट जनरेट नहीं हो जाएगी. और अभी जो वो स्टैटिस्टिक दिखा रहे हैं कि हमने इतना कंप्लेंट रिजॉल्व किया, इतना डिस्पोज ऑफ किया, वो सब फेक है मैम. वो आधे से ज्यादा फेक है. एज एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि जितने भी कंप्लेंट्स है उसमें से आप 50% लोगों को अगर अप्रोच करते हैं, हैव डिलीवर्ड द रिजल्ट एज पर द ऑर्डर, तो उसमें से 30 to 40% कंप्लेंट्स म्यूचुअली सेटलमेंट का था. Okay. That was called as the amicable settlement. Right. तो महारेरा ने वो इंसिस्ट करवा के दे दिया amicable settlement. और amicable settlement के एग्रीमेंट में बिल्डर लिखवा के लेता है कि इसके आगे आप कहीं भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे. सो उनको छोटा मोटा कंपेंसेशन मिला और बाद में डिले होने के बाद घर भी मिला. Okay. इन अवर केस मैं आपको बोलता हूँ, वी आर गेटिंग अवर होम ओनली ड्यू टू अवर बिल्डर एंड नॉट ड्यू टू द महारेरा, नॉट ड्यू टू दिस गवर्नमेंट एंड नॉट ड्यू टू द मोफा. हमारा बिल्डर ही हमको हमारा घर फिर से देने की कोशिश कर रहे हैं. एंड they were very transparent in information sharing now. Earlier it was their business, but when they
seen our association, our efforts, our unity. They are ready to give us, deliver the home by arranging the funds from the stress fund. गवर्नमेंट का जो स्ट्रेस फंड करके है, निर्मला सीतारमन मैडम ने जो डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट का स्ट्रेस फंड, उसमें से हमारे बिल्डर ने कोशिश करके हमारे प्रोजेक्ट के लिए फंड्स लेके आए. अगर वो फंड्स नहीं रहता था तो महारेरा क्या करते थे? महारेरा विल बी इन द बिग ट्रबल. राइट. ओके. हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3000 होम बायर्स ने वहां पे बुक किया है. टोटल 5500 फ्लैट्स का वो प्रोजेक्ट्स है. और आपका 3000 होम बायर्स का एसोसिएशन भी है? हमारा एसोसिएशन है, उसमें हमने 977 लोगों को एक साथ में रखा है. ओके. बाकी के लोगों का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट से भी बुकिंग ज्यादा है, इंटरनेशनल बुकिंग ज्यादा है. वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास शेयर नहीं है. तो इसमें मैं वही रेज करना चाहता हूँ कि अगर हमारा बिल्डर कोशिश नहीं करता था तो महारेरा के भरोसे हमें घर नहीं मिलने वाला था. आज भी महारेरा साइड में पैरेलल ट्रैक में चालू है, उनको कुछ मालूम नहीं है वहां पे क्या करना है, कैसे करना है. So basically, let me just clarify this, that your association of 977 home buyers is dealing directly with the Nirmal Lifestyle developers and trying to find a way without the interference of Maharera. Yes, ma'am. We already found out a way, and with the good faith and the good intention, our builder also promised to relaunch the project within the August and September 2020. So, 1-2 महीने में अगले ये project relaunch हो रहा है, and they promised to hand over the possession at the earliest, and they also tried to achieve the Maharera dates. तो अभी आपको कब expectation है आपको ये मिलेगा फ्लैट आपका? अभी प्रैक्टिकली जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है तो हमारा फ्लैट हमें मिलने वाला है मार्च 2022, प्लस ये पेंडेमिक की वजह से 5-6 महीना आगे पीछे. ओके. ओके. सो अनदर 2.5 years of wait is what you are looking at. ओके. ऑलराइट. सो रवि जी, आपका केस अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल से आप ऑलमोस्ट वेट कर रहे हो और अभी भी आपको कोई गारंटी नहीं है कब मिलेगा. सो आपका केस में आपका बिल्डर निर्मल लाइफस्टाइल वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया. ही स्टॉप्ड द प्रोजेक्ट इन 2016. बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, बट दे आर सेइंग दैट दे आर नॉट हैविंग द फंड्स. राइट. सो दे शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट हॉल्ट किया, एंड देन यू हैड टू गो टू महारेरा, and then again now you are dealing with the builder directly through the association and hoping to get the case. So considering all of these delays, this is not the only project in the country which has faced like this. There are especially in the Mumbai region, there are hundreds of such construction projects which go through the delay. आपने कहा था कि ऐसा फोर्स मेजर लॉकडाउन की वजह से ऐसे बिल्डर्स को अप्लाई नहीं होना चाहिए जो लॉकडाउन के पहले से डिले कर रहे हैं. यस मैम. ये कैसे है मालूम है क्या? दिस वाज द एडिशनल अपॉर्चुनिटी ऑन द साइड ऑफ द बिल्डर्स, क्योंकि उनको पैसा सेव करना है. डिले करने का रीजन क्या है? तो उनके पास पैसा जमा रहता है एंड दे अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है. बिल्डर्स लॉबी का प्रोजेक्ट्स डिले होने के अगर रीजन आप फाइंड आउट करेंगे तो उसमें सबसे वन ऑफ द रीजन है वो एट अ टाइम कम पैसे में वो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं. So you are saying कि लॉकडाउन should not be the reason. That was the one of the reason. तो ये जो फोर्स मेजर है ना, ये ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हमें मालूम है कि पेंडेमिक की वजह से वर्कर्स नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, बाय डिफॉल्ट ही जाने वाला है. But why it was initially taken and raised this concern unilaterally by the Maharera and the government authorities. तो वैसे ही होम बायर्स के हित में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? होम बायर्स के फेवर में ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? राइट. That was our concern.